Then welcome students for the video lecture of subject Water Resources Engineering. So today's topic is minor and micro irrigation. So topic is drip irrigation. So we have seen in earlier videos what is minor irrigation. So we'll see here what is micro irrigation. So drip irrigation is the topic related to micro irrigation. Then myself Rushali Mane, lecturer in Civil Department of Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Then vision of the institute: excellence in technical education to empower youth. Then mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Then develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Then strengthen industry institute interaction. Then vision of the department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Then mission: imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability. Then to develop social and environmental responsible civil engineers. Then effective implementation of teaching learning process to benefit students. Then course outcome: so course outcome is to execute the minor and micro irrigation schemes. So by learning this video we can execute the minor and micro irrigation schemes. Then unit outcome: identify the components of drip and sprinkler irrigation system in the given situation. Then identify the need for drip and sprinkler irrigation scheme for the given area. Then program outcomes mapped here are basic and discipline knowledge, then design development of solutions, engineering tool experimentation and testing, then engineering practices for society, sustainability and environment, then project management and lifelong learning. Then drip irrigation. So drip irrigation is most efficient water and nutrient delivery system for growing crops. So it delivers water and nutrients directly to the plant root zone, so in right amount at right time. So each plant will exactly get what it needs. तो प्लांट को जो पानी जो है ड्रिप इरिगेशन में डायरेक्टली वाटर के रूट्स में जाता है और कितना अमाउंट और कितने समय पे देना है वो एक्चुअली ड्रिप इरिगेशन में फॉलो हो जाता है. तो फार्मर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं कम पानी में, और पानी के साथ फर्टिलाइज़र भी स्प्रे किया जा सकता है और एनर्जी और क्रॉप प्रोटेक्शन भी मिल जाता है फर्टिलाइज़र्स के थ्रू. जो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी होता है तो पानी का वेस्टेज होता नहीं है ड्रिप इरिगेशन में. तो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मेथड है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. देन मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं: पंप, सैंड सेपरेटर, हाइड्रो साइक्लोन, देन सेडिमेंटेशन टैंक है, एयर गेज, मेन पाइपलाइन, कंट्रोल वाल्व्स, फर्टिलाइज़र टैंक, ड्रिप लाइंस, वाटर मीटर्स, ये सारे नॉर्मल वाटर इसके कंपोनेंट्स हैं. तो जो कंपोनेंट्स हम देख फिल्टर्स, तो इट इज़ द हार्ट ऑफ ड्रिप इरिगेशन. द फिल्टर यूनिट क्लीन्स द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज इन द इरिगेशन वाटर सो एज टू प्रिवेंट ब्लॉकेज ऑफ होल्स एंड पैसेज ऑफ ड्रिप नोजल. तो फिल्टर लगाना ज़रूरी है जो क्या करेगा, क्लीन करेगा फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज जो जाएगी. तो वो फिल्टर जो है वाटर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा उसका वर्किंग और इफ़ेक्टिवनेस. तो ये फिल्टर जो है वाटर में सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज जाने से प्रोटेक्ट करेगा और होल्स ब्लॉक नहीं होने देगा. तो फिल्टर जो होते हैं वो होता है एक ग्रेवल फिल्टर या सैंड फिल्टर. तो ये इफ़ेक्टिव होता है अगेंस्ट सस्पेंडेड सॉलिड्स, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स. तो डर्ट को स्टॉप करता है अंदर एक्यूमुलेट होने से, मतलब क्या है, ब्लॉकेजेस अवॉइड करेगा. दूसरा होता है स्क्रीन फिल्टर. तो ये इंस्टॉल होता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वाटर. वाटर किस टाइप का है उसके ऊपर ये स्क्रीन फिल्टर लगाना ज़रूरी होता है. फिर मेन लाइन. तो मेन लाइन क्या होती है, जो पानी जो है फिल्ट्रेशन सब मेन तक पहुंचाता है. नॉर्मली क्या है, पीवीसी पाइप्स होते हैं जो करोजन और क्लॉगिंग से बचाते हैं, मतलब उसमें डिपोजिशन नहीं होता है
हार्ड वाटर वगैरह रहा, बोर वाटर अगर रहा, तो क्लॉगिंग और डिपोजिशन नहीं होता है, तो लाइफ पाइप की ज़्यादा होती है। तो डायमीटर जो है पाइप का वो बेस्ड होता है टोटली फ्लो कैपेसिटी पे। तो वेलोसिटी जो होती है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और फ्रिक्शनल हेड जो है वो 5 ml पर 1000 मीटर रनिंग लेंथ ऑफ पाइपलाइन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। देन सबमेन है, सबमेन जो है वो कन्वे मेन लाइन से वाटर जो है वो ट्रांसफ़र होता है सबमेन में। तो उसमें क्या है, वो जो है सबमेन्स वो ग्राउंड के अंदर बरी होते हैं, 2 से 2.5 फीट ज़मीन के अंदर, और रिजिड पीवीसी पाइप होता है। तो डायमीटर हमेशा सबमेन का मेन से छोटा ही होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ सबमेन्स फ्रॉम वन मेन लाइन डिपेंडिंग अपॉन प्लॉट साइज एंड क्रॉप साइज। तो सबमेन पाइप बहुत ज़्यादा होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप साइज एंड प्लॉट साइज। देन लैटरल्स, तो ये सबमेन से छोटे होते हैं लैटरल्स, स्मॉल डायमीटर फ्लेक्सिबल पाइप और ट्यूबिंग ऑफ लो डेंसिटी, जिस जो कैपेसिटी होती है उसकी 12 mm, 16 mm या 20 mm साइज़ के होते हैं। देन एमीटर्स और ड्रिपर्स, तो मेन कंपोनेंट ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है जो डिस्चार्ज करता है वाटर फ्रॉम लैटरल टू द सॉइल्स। तो लैटरल से पानी किस में जाता है, प्लांट में, ये ड्रिपर्स या एमीटर्स के थ्रू। तो मेन प्रिंसिपल क्या होता है ड्रिपर्स या एमीटर्स का, टू अचीव मिनिमम डिस्चार्ज विथ मैक्सिमम साइज ऑफ वाटर पैसेज। तो मिनिमम डिस्चार्ज विथ मैक्सिमम साइज ऑफ वाटर पैसेज। द लार्ज वाटर पैसेज इज एसेंशियल टू मिनिमाइज क्लॉगिंग एंड प्रोवाइड द मिनिमम डिस्चार्ज फॉर द चीपेस्ट सेटअप। देन कंट्रोल वॉल्स होते हैं, तो कंट्रोल वॉल्स क्या है, फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो वो जनरली क्या है, फिल्टरेशन सिस्टम मेन पाइपलाइन और सबमेन्स में इंस्टॉल किए जाते हैं कंट्रोल वॉल, जो हर वाटर के फ्लो को कंट्रोल करेंगे कंट्रोल वॉल्स। फ्लश वॉल जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ सबमेन होते हैं टू फ्लश आउट वाटर एंड डर्ट, जो डर्ट है उसको फ्लश आउट करने के लिए होते हैं फ्लश वॉल। देन एयर रिलीज वॉल जो है प्रोवाइडेड एट हाईएस्ट पॉइंट इन द मेन लाइन टू रिलीज एंट्रैप्ड एयर, जो भी एयर रहेगी उसको रिमूव करने के लिए, कि जैसे सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये क्या करता है एंड ड्यूरिंग द, तो ये वॉल जो होता है ये स्टार्ट ऑफ द सिस्टम वैक्यूम ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और वह हमेशा सबमेन में प्रोवाइड किया जाता है इफ़ द सबमेन इज़ लार्ज। अगर सबमेन पाइप बहुत ज़्यादा है तो ये एयर रिलीज वॉल प्रोवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि एयर ब्लॉकेज हो जाएगा और वाटर पैसेज ब्लॉक करता है वो, तो उससे पाइपलाइन को डैमेज होने का डेंजर होता है। देन नॉन रिटर्न वॉल, तो नॉन रिटर्न वॉल जो है वो फ्लो जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसलिए ये अवॉइड करता है रिवर्स डायरेक्शन में। जब वो वाटर फ्लो होता है तो ये नॉन रिटर्न वॉल अवॉइड करता है। तो अगर पानी रिवर्स डायरेक्शन में गया तो पंप डैमेज होने का डर है, पाइप डैमेज होने का डर है, इसलिए नॉन रिटर्न वॉल होना ज़रूरी है। वाटर हैमरिंग जैसे प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगे अगर नॉन रिटर्न वॉल नहीं होगा तो। देन प्रेशर गेज, तो प्रेशर रिलीज करने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में प्रेशर गेज प्रोवाइड किया जाता है। देन ग्रोमेट एंड टेक ऑफ, सो दीज आर यूज टू कनेक्ट द लैटरल टू सबमेन, अ होल इज पंच विथ हैंडल टू प्रीडिटरमाइन साइज इन सबमेन। एंड कैप्स, they are used to close the lateral ends, the submain ends and main ends. Submains and mains are provided with flush wall, they are convenient for flushing the line. तो end caps या end sets होते हैं जो submain या main end को end करते हैं। Then fertilizing system, it is used to add the chemical to irrigation water। तो chemical जो है वो टॉक्सिक होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, लेकिन सेफगार्ड मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ इरिगेशन वाटर इनटू वाटर सोर्स विच माइट बी यूज फॉर ड्रिंक्स पर्पस। तो अपने को क्या करना है कि नॉन रिटर्न वॉल होना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो पानी है हम इसके साथ केमिकल भी यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स भी, तो वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए डेंजरस है। तो प्रिकॉशन लेना पड़ता है जब फर्टिलाइजर्स ड्रिप इरिगेशन के थ्रू क्रॉप्स को दिया जा रहा है, तो प्रिकॉशन ये है कि वो पानी जो है वो वाटर सोर्स में वापस ना जाए, अदरवाइज वाटर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजर्स की वजह से
पोल्यूट या पॉइजनस हो जाएगा। तो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, बट देन ऑल्सो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है कि वो फर्टिलाइजर्स जो है वो पानी में वापस ना जाए। देन एडवांटेजेस क्या होते हैं? मिनिमाइज फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स लॉस ड्यू टू लोकलाइज्ड एप्लीकेशन एंड रिड्यूसिंग लीचिंग अलाउज सेफ यूज ऑफ रिसाइकल्ड वाटर। तो ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट लॉस मिनिमाइज हो जाता है, दलदल नहीं होता, लीचिंग मतलब पोल्यूशन, जो सॉइल पोल्यूशन है वो नहीं होता है इसकी वजह से, और सेफ यूज़ ऑफ रिसाइकल्ड वाटर होता है। देन हाई वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है, मॉइस्चर विद इन द रूट जोन कैन बी मेंटेन। तो रूट के को जो मॉइस्चर की ज़रूरत है वो अच्छे से मेंटेन होता है ड्रिप इरिगेशन में, ये बिगेस्ट एडवांटेज है। देन लेवलिंग ऑफ फील्ड इज़ नॉट नेसेसरी। सॉइल जो है, सॉइल टाइप जो है प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, मिनिमाइज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन नहीं होता, जैसे स्प्रिंकलर में है सॉइल इरोजन होता ही नहीं, वैसे ड्रिप में भी। देन हाईली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, देन लो लेबर कॉस्ट, देन अर्ली मैच्योरिटी एंड गुड हार्वेस्ट, देन foliage remains dry thus reducing the risk of disease. Then disadvantages, इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है उसको टाइम लगता है। देन सन हीट अफेक्ट ट्यूब्स, समटाइम्स दे गेट ब्रोकन फॉर एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन। तो सन रेज की वजह से ट्यूब या जो पाइपलाइंस है वो ब्रेक हो जाते हैं। देन प्लास्टिक ट्यूब्स अफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी, प्लास्टिक ट्यूब्स अगर यूज हुए तो सॉइल की फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। तो प्लास्टिक ट्यूब्स यूज़ करना थोड़ा डेंजरस हो जाता है यहाँ पर। समटाइम्स ट्यूब्स गेट क्लॉग्ड, पानी अगर हार्ड है तो ट्यूब्स क्लॉग्ड हो जाती है, सो वाटर कैनॉट पास थ्रू एंड रूट्स गेट डिहाइड्रेटेड, ये प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। अगर ड्रिप इरिगेशन प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं किया देन देयर इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, वाटर एंड हीट अगेन, ये भी एक डिसएडवांटेज है। देन कंपैरिजन बिटवीन ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज़ मोर, स्प्रिंकलर में कंपैरेटिवली लेस है। देन ओनली रूट एरिया इज़ वेटेड ड्रिप में, स्प्रिंकलर में मोर एरिया इज़ वेटेड बाय दिस सिस्टम। देन ड्रिप में ड्रिपिंग वॉल्स आर प्रेजेंट इन ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर में स्प्रे गन्स एंड नोजल्स आर यूज। ड्रिप में रन ऑफ एंड इवापोरेशन इज लेस इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर में रन ऑफ एंड इवापोरेशन इज हायर। देन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज हायर इन ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इज लेस एज कंपेयर टू ड्रिप इरिगेशन। देन ड्रिप इरिगेशन प्रिवेंट्स द स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज, स्प्रिंकलर इरिगेशन डज नॉट प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज। तो ये कंपैरिजन है बिटवीन ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। Then summary, what is mean by drip irrigation, components, disadvantages and advantages, comparison between sprinkler and drip irrigation. Then assignment question, explain with the help of sketch the component part of drip irrigation. Then what are the advantages and disadvantages of drip irrigation, compare drip and sprinkler irrigation. So this was all about today's lecture. Thank you.